अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत सेहत आमा के शोबे में इस्लाहात की पाबंद, सरकारी दवाखानों में असली तर्ज इलाज की फरहमी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का बयान। बीजेपी आने वाले असम्बली इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी, रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने किया दावा। मेट्रो रेल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए किया एहतजाज। माजी में दिया गया तयखुन लाहासिल, हुकूमत से मदाखलत की अपील। राउडी शीटर अयूब खान के खिलाफ हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। 57 साला खातून ने प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए डराने और धमकाने का लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने ज़िले नलगुंडे का दौरा करते हुए मंगोड़ असम्बली हल्के में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा उन्होंने मनीगुड़ा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का भी इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि इस दवाखाने में बहुत जल्द जनरेटर की सहूलत के साथ साथ फ़िज़िकल एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीन की सहूलत भी फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को रियासत भर में 950 नए डॉक्टर्स के तक़र्रुरात अमल में लाए गए हैं, जिनमें 9 डॉक्टर्स इसी दवाखाने में अपनी खिदमात अंजाम देंगे। दोनों तकरीबात में वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी के अलावा रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, రక్తస్రావం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆ తల్లి 30-35 ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి బరువైన పనులు చేసుకోలేకపోతున్నది. మళ్ళీ మహిళలకు సంబంధించిన ఇతర సమస్యలు వచ్చి గర్భసంచి తీసేయడము, అది రకరకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పొలం పనులు కూడా చేసుకోలేకపోతున్నారు. పుట్టిన పిల్లలు కూడా ఈ సిజరిన్ జరగడం వల్ల మొదటి గంటలో తల్లిపాలకు దూరం అవుతున్నారు. ఆ మొదటి గంట తల్లిపాలు తాగకపోవడం వల్ల ఆ పిల్లలు బలంగా ఉండలేరు, రోగ నిరోధక శక్తి పొందలేకపోతున్నారు. మొదటి గంట తల్లిపాలు అనేటువంటివి అమృతంతో సమానము, అవి ఒక టీకా లాగా పనిచేస్తాయి. మొదటి గంట తల్లిపాలు తాగిన పిల్లలు బాగా రోగ నిరోధక శక్తి సంతరించుకొని చురుకుగా ఉంటారు, ఉత్సాహంగా ఉంటారు, ఎత్తు పొడుగు పెరుగుతారు, జరాలు రోగాలు రాకుండా ఉంటారు. हैदराबाद मेट्रो रेल को जहां उसकी शानदार कारकर्दगी की वजह से मुल्क भर में मकबूलियत हासिल हो रही है, वहीं आज उसे मुश्किलात का उस वक्त सामना करना पड़ा जब मियांपुर ताउप्पल तक सर्विस के दौरान तमाम 27 स्टेशंस के टिकट कलेक्टर्स ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास धरना मुनज़्ज़म किया और नारेबाजी की। मुलाजिमीन ने उनकी तनख्वाह 25,000 रुपये देने का मुतालबा किया, जबकि मैनेजमेंट ने कहा कि हड़ताल की वजह से सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ा है। 5 years నుంచి పనిచేస్తున్నారన్న, మాకేం ఇంక్రిమెంట్ లేదు. 11,000 శాలరీ ఉంది, మాకు శాలరీ పెంచాలని అంటున్నాం. అందరికీ పెంచుతున్నాం, మనం పెంచట్లేదు. మా దాంట్లో మెట్రో మాకు శాలరీ పెరగాలని, మాకు శాలరీ పెరిగితే మేము పని చేస్తాం, శాలరీ పెరిగితే మేము షిఫ్ట్లోకి వెళ్ళాం, ఎవరు వెళ్ళరు. ఇప్పుడు 11,000 వస్తుంది. 5 years నుంచి 11,000 మెట్రో స్టార్ట్ అవుతుంది ముందు స్టేషన్ ఆపరేషన్స్ బాగున్నాయి. 300 అబోనే ఉన్నారు. ఫెసిలిటీ కూడా ఉండదు దానికి. ప్లస్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా అంటే లైక్ మాకు డ్యూటీ పరంగా ఏదైనా షార్ట్ ఏదైనా ఎక్సెస్ వస్తే అది మేమే బేర్ చేయాలి. సో అందులో మేనేజ్మెంట్ ఎట్లాంటి రెస్పాండ్ అవ్వదు. ఇంకా మాకు ఏమైనా లీవ్స్ కావాలన్నా నథింగ్, ఎమర్జెన్సీ లీవ్ కావాలన్నా కంపల్సరీ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ అని అంటారు. వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ ఇట్ మే బీ, బట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్. అవును, మాకు ఈ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ షుడ్ ఆల్సో, మేము కూడా సేమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా, కంపెనీ కూడా మాకు 2 words అట్లనే ఉండాలని. ఏం చెప్పారు వాళ్ళు, మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పారు? వాళ్ళు ఇచ్చినారు. అయితే ఆ రోజున 3 daysలో మీకు ఇంటిమేషన్ ఇస్తాము, ఫస్ట్ శాలరీ ఇంక్రీజ్ లేదన్నారు. శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ ఉందా లేదా మేము ఫైట్ చేసాం, మేము ఆ రోజునే అడిగాము. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే 3 daysలో ఇంటిమేషన్ ఇస్తామన్నారు. 3 days తర్వాత డైరెక్ట్గా వచ్చి యూనిఫామ్స్ అవన్నీ తీసుకోండి అన్నారు.
మేమైతే యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయాం. ఎందుకంటే 5 years నుంచి చేస్తున్నాము. 2 years కరోనా తోటి పోయింది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్ అంటూ లేదు. మాకంటూ ఇయర్లీ వన్స్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు కంపెనీ చేంజ్ అవుతుంటోటి ఎటువంటి లేదు. సేమ్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ ఎలాగుందో ప్రొసీజర్ సేమ్ అదే ప్రొసీజర్తో కంటిన్యూ అవ్వాలి అని అంటున్నాను. అలా అవ్వదలుచుకున్నాము. 1 year ఒకసారి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది. మాట్లాడే 6 months ఒకసారైనా ఇంక్రిమెంట్. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय से बीआरएस और कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने मुलाकात करते हुए बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बंडी संजय ने खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी आने वाले असम्बली इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी और उनके कायदीन और कारकुनों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बीजेपी तेलुगु देशम से मफाहमत कर सकती है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि वो अपनी हुकूमत के दूसरी मियाद की तकमील होने के करीब है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया। నేను ఫస్ట్ నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినాక నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మూసేసారు తెలిపిదని అజంజాబ్ మీద సంగతి ఏంది? ఆర్టీసీ ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్నావు, ప్రభుత్వ భూములని కబ్జా చేసుకుంటున్నావు. దాంతోపాటు పవర్ గురించి మాట్లాడాను. 24 గంటల కరెంటు గతంలో సవాల్ చేసిన 24 గంటల కరెంటు ఎక్కడన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నావా? నీ అనాలోచిత విధానాల వల్ల ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వడాన్ని ఎప్పుడు వ్యతిరేకించలే. అందరూ साबिक अपोजिशन लीडर कांग्रेस जाना रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले श्रीधर रेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने बताया कि श्रीधर रेड्डी ने साबिक वज़ीर आला चिन्ना रेड्डी के हमरा 1969 में तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और उनकी मुसलसल जदोजहद और कांग्रेस की वजह से रियासत की तकसीम और तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने बताया कि उनके श्रीधर रेड्डी से देरीना ताल्लुक़ात थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने उन्हें हॉस्टल में क़याम व ताम की सहूलत बेहतर अंदाज में फ़राहम ना किए जाने और अक्सर तलबा को हॉस्टल की सहूलत से महरूम रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें हॉस्टल में बेहतर सहूलत फ़राहम करने के इक़दाम किए जाएँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलपली म्यूनसिपालिटी में तरक्याती काम जारी हैं। सदर नशीन म्यूनसिपालिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि जलपली के सरकारी स्कूल के लिए हमारी बस्ती हमारा प्रोग्राम के तहत 14 लाख रुपये मंजूर हुए थे और इसी का काम जारी है। बताया गया है कि यहाँ पर स्कूल में चूल्हे के अलावा फ्लोरिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क भी अंजाम दिया जा रहा है, जबकि फर्नीचर भी स्कूल को फराहम किया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर और दीगर भी मौजूद थे। आज जलपली म्यूनसिपालिटी में जो जलपली विलेज में जो गांव में जो स्कूल था गवर्नमेंट का पुराना, उसको मनाबड़ी में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से और हमारे राज बैरिस्टर सदुनी साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम की हिदायत पर यहाँ पर 14 लाख रुपये सैंक्शन किए गए, जिसमें पूरे स्कूल का रिनोवेशन किया जाएगा। एकदम मॉडर्न स्कूल जैसा हमारे बाहर जो स्कूल्स रहते हैं वैसा स्कूल उसको बनाया जाएगा। यहाँ पर फर्नीचर दिया जाएगा और यहाँ पर जो किचन जो बच्चों को खाना खिलाया जाएगा वो मॉडर्न टाइप का किचन भी बना रहे हैं, उनके लिए टॉयलेट्स भी बना रहे हैं। पूरा अच्छे से अच्छा इनको एजुकेशन, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे जो तालीम लेंगे वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। बच्चे तालीम जितनी उनके पास होंगी तो उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको रोज़गारी भी मिलेगी। तो हम
एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है। जैसा दिल्ली में स्कूल है यहाँ पर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल है उससे और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, जो जलपल्ली की जो अतराफ में जो पूरे आके यहाँ पर पढ़ते, उनकी तालीम के लिए हम अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करें। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की तरफ से आकर यहाँ पर दौरा किए हैं, जहाँ पर ज़रूरी था फ्लोरिंग करा रहे हैं, जहाँ फर्नीचर नहीं है, 3 से 4 क्लास में फर्नीचर नहीं है बैठने के लिए बच्चों को, तो वो भी फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉयलेट्स के लिए आया नहीं है, टॉयलेट्स भी ख़राब है, उसको भी बना रहे हैं। बच्चों के लिए खाना बराबर नहीं है, उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। करके ये गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल बनाए, प्राइवेट स्कूल के जैसा दिखना बोल के हम कर रहे हैं कोशिश। इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसका इनाग्रेशन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता अंदर मैडम करेंगे। जबकि फ़ोटो और जो इनाग्रेशन की फ़ोटो देखने के बाद आप खुद परेशान होंगे कि स्कूल गवर्नमेंट का है या प्राइवेट स्कूल है। इंशाल्लाह उसी बेहतरीन तरीके से हम बनाएंगे। बच्चों के एजुकेशन के लिए टीचर्स की कमी है तो टीचर्स को लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा इनको एजुकेशन देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने चिकड़पल्ली पुलिस के साथ मिलकर हशीश ऑयल की सरबराही के रैकेट का पर्दाफाश किया। नारकोटिक विंग और पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर और 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करते हुए 5 ग्राम हशीश ऑयल की 7 बोतलें और 400 लीटर पेट्रोलियम एथर जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ड्रग सप्लायर नवीन कुमार और दूसरे पेडलर्स मोहन यादव, कल्याण और सुरेश के साथ मिलकर ये कारोबार कर रहा था। इस टोली के कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन्स और एक कार को भी जब्त किया गया। जब्त शुदा अशिया की जुमला मालियत 14 लाख रुपए बताई गई है। यही पता चला है कि प्रवीण कुमार हैदराबाद और बेंगलुरु में 15 ड्रग पैडलर को ड्रग सप्लाई कर रहा था। गांजे की सप्लाई में भी प्रवीण मुलविस पाया गया है। लड़कियों और ख़वातीन के लिए दीनी उलूम से बहरामंद करने वाले मदरसे जामिअतुल मोमिनात की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 11 और 12 फरवरी को ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक मुशावरती इजलास मौलाना हसन फारूक की निगरानी में जामिअतुल मोमिनात में मुनक़िद हुआ, जिसमें मोहतरम मदरसा मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी के अलावा दीगर ज़िम्मेदारों और मेहमानों ने शिरकत की। ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के मक़ासिद और इसके ज़ेली अनावीन पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंतज़ामी उमूर के लिए मुशावरती इजलास ज़िम्मेदारान का बुलाया गया था, जिसमें उलमा मशाइख़ किराम की भी शिरकत रही है। मुझको भी सआदत हासिल हुई इस इजलास में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुसूसियत के साथ तेलंगाना रियासत के रहने वालों के लिए और बिलख़ुसूस बिलउमूम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, ख़वातीन बिलख़ुसूस उनके लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जामिअतुल मोमिनात की जानिब से 2 यौमी 2 रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सतह पर कुल हिंद 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है, जो फरवरी की 11 और 12 तारीख़ को ईदगाह मीर आलम पर मुनक़िद होने जा रही है साबिक़ की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बड़े बड़े मुफ़क्किर उलमा इकराम मुफ्तियान निज़ाम के भी बयानात होंगे। साथ ही साथ मुफ्तियात, ख़वातीन आलिमात और बड़ी बड़ी वाइज़ात के भी अहम तरीन उन्वानात पर जो मुआशरे की ज़रूरत से हम आहंग हैं, इंशाअल्लाह उन पर इनके बयानात भी होंगे। मैं तमामी इस्लामी ख़वातीन से बिलख़ुसूस मैं गुजारिश करता हूँ मुखलिसाना तौर पर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में 11 और 12 हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से सनती नुमाइश में आवाम की शिरकत को यकीनी बनाने की गर्ज से औक़ात कार में इजाफ़ा किया गया है। मेट्रो रेल के 2 डिवीज़न्स एलबी नगर तामियापुर और नागुल ता राय दुर्गम में औक़ात को 12 बजे तक कर दिया गया है। इसी तर्ज पर मेट्रो रेल ने गांधी भवन पर क़ायम मेट्रो टिकट काउंटर की तादाद में भी 4 से 6 काउंटर्स का इजाफ़ा किया है। वाज़ेह है कि हैदराबाद में नुमाइश आम तौर पर 45 दिनों तक चलाई जाती है और 82वीं
नुमाइश का भी कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो रेल का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। बदनाम ज़माना रॉडी शीटर अय्यूब खान के खिलाफ 57 साला खातून ने डराने और धमकाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुसैन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक खिलवत की साकिन जमीला बेगम ने अपनी शिकायत में बताया है कि बहादुरपुर में वाक़े 155 गज़ प्रॉपर्टी पर कब्ज़े और जबरन हासिल करने की गर्ज से रॉडी शीटर अय्यूब खान और उसके साथियों मेराज खान, मुन्ना, अंसार, अजहर बाबा उन्हें धमका रहे हैं। हुसैन पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया, ताहम अय्यूब खान मफरूर बताया गया है। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पीर की रात मासाब टैंक पर वाक़ एक रेस्टोरेंट के पास हुए झगड़े में रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुलाजिमीन झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक स्विगी के ऑर्डर के लिए आए नौजवान सादिक के साथ अहमद नामी नौजवान की बहस व तकरार हो गई और फिर दोनों में हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय पर टोली की तरफ से हमला किया गया और जब डिलीवरी बॉय बचने के लिए रेस्टोरेंट के किचन में दाखिल हुआ, उसका पीछा करते हुए दूसरे भी वहां दाखिल हो गए। इस दौरान वहां पकवान कर रहे 3 नौजवान गर्म तेल जिस्म पर गिरने से झुलस गए। बताया गया कि सोनू नामी मुलाजिम 80% झुलस चुका है, जबकि इलियास और सज्जल भी इस वाक़े में झुलस गए हैं। तीनों मुतासरीन बैरूनी रियासतों के बताए गए हैं जो रोज़गार के लिए हैदराबाद आए थे। इतला मिलते ही हुमायूंनगर पुलिस भी मुकाम वाक़े पर पहुंची और इसके सिलसिले में एक केस भी दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया। इस वाक़े से रेस्टोरेंट के आसपास सनसनी देखी गई। झारखंड हुकूमत की जानिब से जिन्हें मज़हब के मुक़द्दस मुकाम तीरथ शेखर जी को सयाहती मुकाम में तब्दील करने के ऐलान की सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की थी। इस सिलसिले के तहत जैन कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुँच कर हदीयत तशक्कुर पेश किया। उन्होंने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की आवाज़ को सारा मुल्क सुनता है और वो मसाइल और मुद्दों पर ही बात करते हैं। झारखंड हुकूमत के फैसले के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से उठाई गई आवाज़ का उन्होंने खैर मकदम किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत सेहत आमा के शोबे में इस्लाहात की पाबंद, सरकारी दवाखानों में असली तर्ज इलाज की फरहमी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का बयान। बीजेपी आने वाले असम्बली इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने किया दावा। मेट्रो रेल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए किया एहतजाज। माजी में दिया गया तयखुन लाहासिल, हुकूमत से मदाखलत की अपील। राउडी शीटर अय्यूब खान के खिलाफ हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। 57 साला खातून ने प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए डराने और धमकाने का लगाया इल्जाम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।